ناظرین کوشر خبرنامہ ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن ہز تفصیل جموں کشمیر سابق وزیر اعلیٰ تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی صدر محبوبہ مفتی جموں کشمیر مسلس حوالہ کت کران وونمت یہ اخ پیچیدہ مسئلہ یمک حل کرنے ضرورت تمو ون یہ مسئلہ ست جموں کشمیر ہند لوک تکلیفس مز ہنامت تو جموں کشمیر ہز معیشت تہ متاثر حص مز سپدین تمو ون ہندوستان تو پاکستانس پز پانونی کت بات کرت پن تعلقات بہتر کریں یت برصغیرس مز امن قیم یہ کرنے دیکھیے آپ جیسا سب لوگ جانتے ہیں جموں کشمیر کا مسئلہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اور پچھلے 70-75 سال سے آپ نے دیکھا جموں کشمیر کی کیا حالت بنی ہوئی ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے جموں کشمیر ایک جیل میں تبدیل کیا گیا ہے۔ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان نہ صرف جموں کشمیر کی جیلوں میں بلکہ ملک کی تمام جیلوں میں اس وقت مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں بات کرنا مشکل ہو گیا ہے، روز کہیں نہ کہیں انکاؤنٹر ہوتے ہیں، روز لوگ جو ہیں مارے جا رہے ہیں، سویلین تکلیف میں ہیں، ہماری معیشت دن بدن گر رہی ہے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ایسے میں اگر پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم جموں کشمیر مسئلے کا حل چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ہندوستان اور پاکستان کے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، جو غربت یہاں ہندوستان میں ہے اور پاکستان میں ہے، جو ہم پیسہ آرمی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے جہاز کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ہتھیار خریدنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ پیسہ ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا ملک اس وقت ہندوستان بنگلہ دیش کے پیچھے چلا گیا ہے GDP میں اور غربت میں پہلے سے بھی زیادہ نیچے چلا گیا ہے کہ کروڑوں لوگ اور غربت میں چلے گئے ہیں، بلو پاورٹی لائن چلے گئے۔ اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے حالات بھی بہت خراب ہیں، وہاں سیلاب نے اور تباہی مچائی ہوئی ہے۔ ایسے میں اگر دونوں ملک آپس میں بیٹھ کے جیسے واجپئی کے ٹائم میں ہوا تھا، مل بیٹھ کے جموں کشمیر کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں تو وہ نہ صرف جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بلکہ پورے ملک اور پورے برصغیر کے لیے ایک خوشخبری ہوگی۔ یہ برچہ بھارتیہ جنتا پارٹی سینئر لیڈر صوفی یوسفن محبوبہ مفتی پہ پلٹ وار کران وونمت زِ PDP حکومت طرف اس درندازی جموں کشمیر مز شروع کرنا آمز BJP طرف آو تمیک خاتمہ کرنا۔ تمو وون زِ BJP حکومتس مز آز جموں کشمیر ہند لوک سکون سان زندگی گزر بسر کران۔ تمو وون زِ سہ دور گو ختم یل کشمیر مز ہڑتالن ہند کیلنڈر جاری ٲسۍ یوان کرنا۔ کشمیر میں وہ درندازی ختم کی جو درندازی یہاں PDP نے رکھی تھی، جو نیشنل کانفرنس نے رکھی تھی۔ آپ دیکھیے 5 اگست 2019 کے بعد آپ بھی صبح نکلتے ہیں اور شام کو واپس صحیح سلامت آ جاتے ہیں۔ جب آپ پہلے 2019 سے پہلے آپ گھر سے نکلتے تھے تو آپ کی ماں کہتی تھی میرے اللہ اس کو صحیح سلامت واپس لائے۔ یہ ہم سب کشمیریوں کے اوپر حال تھا۔ آج لوگ جو ہے جوگ در جوگ نکلتے، صبح 8 بجے شام کو 11 بجے پیسہ کما کے آتے تھے اور پھر اپنے عیال کو چلاتے۔ پہلے ان لوگوں کی وجہ سے 1 مہینے میں 20 دن کا ہڑتال ہوتا تھا، کیلنڈر نکلتے تھے۔ اب وہ کیلنڈر ختم ہو گئے، اب محبوبہ جی کا گھر خالی ہو چکا ہے، وہ اپنے گھر کے لیے روئے نا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کشمیر کے لوگوں کو اپنے دل سے لگایا ہے، اپنے سینے سے لگایا ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ کسی عوام سے بھی پوچھیں، کسی عام ویکتی سے پوچھیں، وہ کہے گا جی مودی جی بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں کچھ دے دیا ہے۔ یہاں پنچایت راج جو محبوبہ جی کہتی تھی سیلف رول ہم دیں گے، ہم نے دے دیا، ہم نے سیلف رول ان کو دے دیا۔ 2017 میں نریندر مودی جی نے جو ہے پنچ سرپنچ کے الیکشن کیے، پنچایت راج بنا دیا۔ آج گاؤں کے اس 5 کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ سیلف رول ہے، یہ ہم نے دے دیا۔ تو محبوبہ جی کا گھر خالی ہو چکا ہے، انہوں نے یہاں زمینیں کھائی ہے، تو مودی جی وہ اس سے حساب مانگ رہا ہے، تو اس لیے وہ BJP انچارج کشمیر سنیل شرما سند طرف آیا سری نگرس مز ایک پریس کانفرنس سنز کرنے یا دوران تمو وون زِ وزیر داخلہ امت شاہ سپدن 1 اکتوبر جموں کشمیر دورہ خاطر روان۔ تمو وون زِ ام حوالہ ورکرو طرف ایک ریلی ہند سنز کرنے یتھ مز جنوبی کشیر، شمالی کشیر تو وسطی کشیر ہند لوک شامل سپدن۔
یم 2 اکتوبر ورمولس مز وزیر داخلہ امت شاہ استقبال کران تمو ون ضلع ورمولس مز کرنا وزیر داخلہ امت شاہ عوامی جلسس خطاب تمو ات موقع پہ گورنر انتظامیہ طرف تلنہ آمت اقدامن ہند خیر مقدم کورمت ات موقع پہ پارٹی ترجمان الطاف ٹھاکر سینئر لیڈر صوفی یوسف تو باقی لیڈر تہ موجود. प्रत्यक्ष डायरेक्ट संवाद के लिए देश के आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी 1 अक्टूबर को यहां पधार रहे हैं और पार्टी कश्मीर यूनिट ने, कश्मीर इकाई ने एक फैसला लिया है कि पूरे कश्मीर से आम जनता का संवाद एक रैली के रूप में करेंगे, जो रैली बारामुल्ला में होगी और इसी इकाई ने समय तथा स्थान भी तय किया है. 11 बजे बारामुल्ला के टाउन में ये रैली होने जा रही है और इसी रैली की एक विस्तृत जानकारी के लिए आप सबको तकलीफ दी. सोशल मीडिया में या प्रिंट मीडिया में रैली की इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल हम पहली बार आज इस रैली के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं. ये रैली पूरे कश्मीर की होगी, विशेषकर जो नॉर्थ कश्मीर है वहाँ से ज़्यादा लोग निकलेंगे, लेकिन साउथ कश्मीर भी कहीं पीछे नहीं रहेगा. अनंतनाग से लेके पूरे बारामूला तक आम व्यक्ति आदरणीय अमित शाह जी को सुनने के लिए, संवाद के लिए वहाँ पे इकट्ठे होंगे और जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस वक्त विकास के कार्य चल रहे हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही हैं, उनकी भी जानकारी आम जनमानस को होगी. इसके अतिरिक्त यदि और कोई नए स्टेप्स केंद्रीय सरकार ने उठाए होंगे विकास कार्यों को लेके, उनकी भी जानकारी मिलेगी. मुझे लगता है कि जिस विश्वास के साथ आम कश्मीरी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, ये बराय राजौरी मज भारतीय जनता पार्टी लीडरों तरफ वज़ीर दाखिला सिंदिस दौरस हवाल अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस संज कर यथ दौरान तमो वोन 1 अक्टूबर सपदन तम जम्मू कश्मीर रवान ये राजौरी मज तम अवामी जलसस खिताब करान. तमो वोन अस उम्मीद वज़ीर दाखिला करन तरक्की हवाल की बड़ ऐलान. तमो वोन यह दौर तवारीखी दौर मान यवान. साथियों का इस पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन. आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हमारा 2 दिवसीय दौरा है जम्मू कश्मीर का, यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह साहब का, उसके रिलेटेड है. क्योंकि आप लोगों में भी पिछले 2-3 दिनों में क्लास लग रहे थे, आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं. आज हमारी सारी पिक्चर क्लियर है, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि प्रेस के साथियों को बुला के ब्रीफ उनसे बात कर दी जाए. साथियों, 2 दिन के दौरे में एक दिन राजौरी पूंछ को मिला है, एक दिन बारामूला कुपवाड़ा को मिला है. दोनों के दोनों एरिया जो है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है. वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में खुद चल के देश के एक बिल्कुल तगड़े जो गृह मंत्री हैं वो दौरा करके यहाँ के लोगों से डायरेक्ट 1-to-1 बात करेंगे, अपनी बात उनको सुनाएंगे और उनकी बात करेंगे. और हम ये उम्मीद करके चलेंगे कि जो हमारे ये पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उनको, उनके आने से इसको कोई फायदा होगा. जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन मुलजमो शहर श्रीनगरस मज एहतजाज तो नारबाजी कर्मज. तमो वन यम तमीराती कंपनी हंद मुलजमो जम्मू कश्मीर मज कहिया प्रोजेक्ट बन, तहम मुलजिम आज पतमो 5 रेतों पे उजरत नश महरूम, यम किन तम मुश्किलातन मज हन आमद. तमो वन यद ठेकदारन पोस दिन, तहम छन सन उजरत वागुजार यवान करना. तमो अमवाल गवर्नर इंतजामिया तो मुतलका महकम किन जिम्मेदारन अपील कर्म सन बकाया उजरत गस जल्दी वागुजार इन कर युथ सन दह गुजारुन सपदिन मुश्किल. हमारी फैमिली का फ्यूचर, हमारी फैमिली का फ्यूचर, हमारी फैमिली का फ्यूचर. हम
मैं रिप्रेजेंट करता हूं JKPC वर्कर्स यूनियन को एज ए प्रेसिडेंट। मेरा नाम मसूद अहमद मीर है। चूँकि आप वाकिफ़ हो गए और आपको ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप मुख्तलिफ मौक़ों पर यहाँ आए हैं, कि हम यहाँ पिछले 28 दिन से बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे, पेन डाउन स्ट्राइक पे, इसलिए कि हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं वो छीने जा रहे हैं। मुलाजमों का बुनियादी हुकूक सैलरी होती है। जब वो काम करते हैं तो उसके बाद एज़ पर रूल, एज़ पर गवर्नमेंट रूल, उनको उम्मीद होती है कि हमको सैलरी मिलेगी, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर देयर, दे हैव परफॉर्मड देयर ड्यूटीज, दे हैव वर्कड, एंड आफ्टर दैट उनको एक्सपेक्ट होती है कि सैलरी मिलेगी। मगर वो सैलरी पिछले 4 महीनों से, मई, जून, जुलाई, अगस्त से अब तो 5वां आ गया, यानी कि 5वां भी अब निकलने को तैयार है। कुछ ही दिन इस सितंबर में भी रह गए, फिर हमारी सैलरी 5 महीने यानी कि एरियर में पड़ जाएगी। ये एक बड़ा अलमिया है, बड़ी मुसीबत है, बड़ी परेशानी है कि हम लोगों की नहीं सुनी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को हम पिछले 28 दिनों से कंटिन्यूसली ये गुहार लगा रहे हैं, खाली यहां हम नहीं बैठे हैं। दिस मस्ट बी नोटिस्ड, ये नोटिस किया जाए कि जम्मू और कश्मीर में जितने भी JKPC के 24 डिवीजन हैं, चाहे वो कश्तवाड़ हो, उधमपुर हो, राजौरी हो, रियासी हो, यहाँ शुपियान हो, यहाँ कुलगाम हो, अनंतनाग हो, श्रीनगर हो, कुपवारा हो, कुलगाम हो, ऑल ओवर दीज 24 डिस्ट्रिक्ट्स या 22 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां भी JKPC के डिवीजन हैं, इंक्लूडिंग अवर रीजनल ऑफिस जो इनकम टैक्स ऑफिस के करीब है, BR अम्बेडकर चौक जम्मू में, और यहाँ हेड ऑफिस हफ्ते चिनार में, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कंटिन्यूअस 28 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड वाइस चेयरपर्सन हिना शफी भट्ट सिंद तरफ आवाज काकपोरा पुलवामा को दौर करने ये तमो जारी कामन हुंद जायजा हेत। तमो कर काम करने वाले मजूरन सत कत बात। तमो दित मजूरन पे जोर जे यत सनतस गस मजीद पोचर युन यानी युथ वारियाहन लुकन रोजगार मेल। तमो अत मौके पे नुमाइंदन सत कत कराना वोनमुत जे महकम तरफ कदम तुलने यवान युथ बेरोजगार नौजवानन रोजगार मेल। बहुत ही खूबसूरत इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, जहाँ पे लड़कियों को रोज़गार मिल रहा है। पूरे मुल्क में यहाँ से कलम जा रहा है। इससे खुशकिस्मती की बात जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी हो नहीं सकती है। हमारा ही अपना पेड़ जो जहाँ रिसोर्स की कमी नहीं है, एम्प्लॉय की कमी नहीं है, बस एक नज़रिया है, एक डिटर्मिनेशन है जम्मू कश्मीर के यूथ को ऐसे क्लस्टर्स जो बने हैं इनसे सीखना चाहिए, और हम अपने महकमे के थ्रू भी ऐसा क्लस्टर बनाना चाहते हैं। यही मकसद था यहाँ पे विज़िट करने के लिए, जिनको हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अप्रिशिएट किया है। बहुत सिंपल सा काम है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। ये अभी तक मुझे नहीं लगता है कि इतने ऊंची कहीं लेवल तक ये बात भी मालूम थी कि ऐसे हमारे यहाँ से जम्मू कश्मीर से, जब तक कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये खुद अपनी मन की बात में जिक्र किया कि ऐसा भी हमारे पुलवामा में हो रहा था। मुझे लगता है इंडस्ट्री, हमारे महकमे को इस पे तवज्जो देना चाहिए, ऐसे मोर क्लस्टर्स बनाने चाहिए, और जितने भी इनकी रोज़मर्रा की इश्यूज़ हैं, चाहे बिजली है, चाहे बाकी मसाइल हैं, वो रिज़ॉल्व हों। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी सिंह तरफ आवाज जिला वरमुल को दौर करने यह दौरान तमो हाजी मोहम्मद मुराद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सन्ज ज़ियारत शरीफस पे हाज़री दीज। तमो अत दौरान वोनमुत ज यन वलिस वक्तस मज यह ज़ियारत मजीद मर मज बनाना। तमो वोन ज वक्फक जिम्मेदार तो यह सोन फर्ज ज करो यमन ज़ियारतन हज रच रावट। कि आज हम यहाँ पे ज़ियारत शरीफ जांबाज साहब के यहाँ आए हैं बारामूला में। यहाँ पर क्योंकि अब हमारा काम है, हमारा डिपार्टमेंट है, हमने देख रेख करनी है, हम केयर टेकर्स हैं वक्फ के, खुद चल के आना है, देखना है कहाँ खामियां हैं। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से ज़ियारत शरीफ की अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। लोग बेजार हैं, लोगों के दिल आज़ुर्दा हैं, और जब आज़ुर्दा दिल कोई भी बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और वली उल्लाहों के
रू भी इससे थोड़ा सा हम पे फिर नाराज़ रहते हैं कि इस कदर क्यों यहाँ पे बेरुखी करी गई है। हम चाहेंगे कि अल्लाह करे कि अब ये वलीउल्लाहों की रूहें हम पे मेहरबान रहें, हम वलीउल्लाहों की दरगाहें खूबसूरत बनाएं और जो यहाँ पे ज़ायरीन आए वो अपनी बात अपने पीरों से कहने आते हैं, अपने वलीउल्लाहों से बात करने आते हैं, वो उनसे बात करेंगे और माहौल ऐसा हो कि उनके दिल को सुकून भी मिले, एक तो नूर से, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। वलीउल्लाहों की दरगाहें जिस तरह से होनी चाहिए थी उस कदर यहाँ अपलिफ्टमेंट नहीं हुई है। हम चाहेंगे कि हमसे जो अब हमारा जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड हमारी ज़ेरे निगरानी में चल रहा है उसमें यही मकसद है कि हम ऑफिस में नहीं बैठते हैं, दिन रात काम कर रहे हैं ताकि खुद यहाँ चल के आए देख। सिंहपुरा पटन रोजन वाले ड्राइवरों तो अवामी नुमाइंदों शिकायत बवान वोनमुत सुमो स्टैंड सिंहपुरस मज बाथरूम कह सहूलत मौजूद यमकिन मुश्किलातन मज हनामत वोन इंतजामिया अम हवाल वन आव तहम दुत तमो अत कुन कह त जुन यमकिन सवारन तो ड्राइवर हजरातन वारिया मुश्किलात वेतरन पेवान। तमो अम हवाल इंतजामिया अपील कर्म अत मसलस कुन गस जुन युन दिन युथ लूकन बिथ यन वल मुश्किल दूर सपदन। मसला मेन चौक हार तक मेन चौक ये लोग 70 सास पकान दोस और योर बाथरूम प्रॉब्लम पत लट कह गवर्नमेंट टेंडर मगर तम टेंडर गई गब CDR वरित मगर बाथरूम आव कहीं कल सुबह कल पाया कहीं ग तुम क्या बना महकम वाल क्या बन ब्लॉक के थ्रू टेंडर द्रामत CDR वरित मगर कम लज नम कहीं खमुक मगर तम कागजी गुर वन बाकी नहीं कहीं अंधा कानून घर घर शौचालय मगर कुछ नहीं यप नवगांव सुंबल श्रीनगर मागम लूग बाथरूम मेन चौकस की खतरनाक प्रॉब्लम माजी बेन बहुत सरपंच हारत्रट ऑलरेडी अम ब्रो त्र तकरीबन 6 रेत ब्रो त्रोमुत CICS मज SBM मज 3 लाख रुपये टेंडर द्राय तम पे समझ DPO ये टेंडर गई कम क्या लगान तकरीबन गई आज 7 रेत गो आज मगर वन कम लगान कि यमन परेशान गसान वारिया तकरीबन 40 गामन स्टैंड यपर 40 गाम तकरीबन 7 रूट यपर गसान गांदरबल पे सुंबल या मागम। हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल म्यूनसिपल कमेटी सुंबल तो एक्साइज महकम तरफ आवाज नशा मुक्त भारत अभियान हवाले एक रैली हुंद संज कर यथ मज तलब इलमो अलाव वस्तादों तो मुतलका महकम के जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे तलब इलमो तरफ नशस हवाल कल्चरल प्रोग्राम ते पेश आय कर तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत वबा निश दूर रोजन खतर समाज किस हर अकिस नफरस पन जिम्मेदारी निभावन जरूरी। तो वोन अम हवाल पज वालिदैन ते पन्न बचन हुंद खास ख्याल थावन। है मुल्क भर में नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। एक्साइज अरे नार्थ कश्मीर पिछले 1 महीने से इस काम में लगे हुए हैं, जिसकी कड़ी आज आपने हायर सेकेंडरी सुंबल में देखी है। हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब और कॉलेज इंतजामिया सुंबल के ताउन से और म्यूनिसिपलिटी के ताउन से आज हमारा नशा मुक्त J&K अभियान यहाँ पे प्रोग्राम का मुनक़्क़द हुआ और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग रहते हैं और ख़ासकर नॉर्थ कश्मीर के जितने भी लोग हैं उन तक एक पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि इस नशे की बिदत को किस तरह जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और ऐसे प्रोग्राम इंशाअल्लाह रहमान हमारे और भी। वर्मुल फरसल रोजन वाले लुको खुशी बवान वोनमुत आज शिम इलाक सड़क पे वारिया काल पत तारकोल वहरावन यमकिन मुतलका महकमे तो इंतजामिया शुक्रगुजार तमो वोन ये लूकन हज पत काल पे मंग तहम सपदे यह आज पूर। तमो वोन ब्रोह ये लूकन वारिया मुश्किलात वेतरन पेवान तहम वात लूकन वारिया राहत।
तो मेरा नाम है अब्दुल रशीद मीर, मैं पंचायत हल्का फ्रसार डिप्टी सरपंच, एज ए डिप्टी सरपंच, और बाशिदगान भी यहाँ ही का हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 47 साल मेरा उम्र है, 47 साल में मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे इस इलाके में कभी मैगडम आज, लेकिन 1947 के बाद मेरे ख्याल में पहले हिस्ट्री में आई है मैगडम। पहले वजह क्या है इस इलाके को हर हमेशा क्यों नजरअंदाज? यहाँ तो आपको पता ही है, सियासतदान जो होता है कि ये कर रहे हैं, सियासतदान पहले भी। तो अगर कोई मतलब आजकल के दौर में, ये मैं आजकल के दौर के बताऊँ उनका, कि अगर कोई बड़े आदमी होते थे वो चाहे DCI पे चाहे कहीं भी जाते थे, चाहे कहीं भी उनके साथ कोई गरीब बंदे जा रहे थे, वो पहले अंदर जाते थे, बोलते थे हम आपकी काम कर रहे हैं, तो चलो मैंने आपका काम किया है। लेकिन आज माशाल्लाह हम इनको आज सलाम कर रहे हैं, पहले ये हमको सलाम करने हैं, आज यही लोग हमें सलाम करते हैं। मसला मेन मसला यही है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, खासकर मैं मोहम्मद अनवर खान साहब से बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतना शुक्रगुजार हूँ कहने की बात ही नहीं है कि वो कदम कदम मेरे साथ रहा। मैंने DDC को एक बार फ़ोन किया है, मगर उस फ़ोन का कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं मुझे मिला है DDC के बारे में, चाहे BDC हो चाहे DDC हो। थे फ्रसार के मुकामी लोग जिनके साथ हमने बात की, तो इनका ये कहना है कि 1947 से आज तक मैगडमाइज नहीं हुआ इस इलाके में, बल्कि आज ये खुशखबरी सुनने के बाद जो है ये बड़े खुश और मुतमईन दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आज हम भी यहाँ पे आए और इन लोगों के साथ बात की, तो इनका ये कहना है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ, चाहे हम यहाँ पे R&B महकमे की बात करें या इसके साथ साथ जो मोहम्मद अनवर खान हैं BJP के सीनियर लीडर, उन्होंने भी इस पे जो है काफ़ी पहल की। हालांकि और भी जो है यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाया जा सके, और इसके साथ साथ चाहे हम दीगर मसले मसाइलों के हवाले से बात करें, क्योंकि अब आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा इस मैगडमाइज के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम या बिजली के हवाले से या पानी के हवाले से क्या उसको बेहतर बनाया जाएगा इस इलाके में या नहीं, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट। तो नाज़रीन, ये कोशिश खबरनामा होती है, इतना से दियो इजाज़त, खुदा सवाल।